Hi friends, welcome back to SRB Creators by Sunil Kumar R. So, in this video, we'll be studying the next part of the magnetic effects of electric current. So here we'll see what we are going to study. So here in this magnetic effect of electric current part 2, we'll be studying only two things. What is magnetic field due to current through a straight conductor and right hand thumb rule. So in this video the audio will be with Hindi and English. So हमने जैसे प्रीवियसली हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और हम वहाँ पर पढ़े थे व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, और हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर. जब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर उसमें करंट जा रहा है तो किस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल. So as you see here, we are going to study what is magnetic field due to a current through a straight conductor. If we have a straight conductor and if we are passing electricity to a straight conductor, what effect we are going to see, and then we are going to study what is right hand thumb rule. So before going to that, we'll go now. Before going to that, we can see what we can do. We can go for previous chapter. So previously what we learned, we'll see that, and then we'll come back here. So previously we learned we'll have a one magnet. So before going to this, here previously we learned we'll have one straight conductor, and here a cardboard was there, and here a battery setup was there, and we could see that there was a current passing through this. Correct, in this direction the current was passing. Once the battery is switch on, and once we brought a compass near to this conductor, we see some deflection in the needle. Correct. So it indicates what? There is some sort of magnetic field in this field. So पहले हम लोग ने क्या किया था, पिछली बार हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. एक कार्डबोर्ड शीट लिया था, उसमें हम लोग एक कंडक्टर पास किए थे और एक बैटरी को अटैच किए थे. सपोज एक करंट समझ लिए इस डायरेक्शन में आ रहा था, और जैसे ही करंट बैटरी स्विच ऑन किए थे हम लोग, फिर हमने एक कंपास नियर टू ये कंडक्टर लेके आए थे. जैसे हम लोग कंपास लेके आए, हमने देखा कि कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है. ये डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट इधर सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, प्रीवियसली हम लोग जो किए थे. तो ये था हम लोग का प्रीवियस वाला ए. तो अभी नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? The area around a magnet, where we can experience a magnetic effect. The area around which we can experience a magnetic effect is called magnetic field. The lines representing the magnetic field is called magnetic फील्ड लाइन. सो क्या था मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या था? मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया है जिस एरिया के अंदर हमको मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है. द एरिया अंडर विच वी कैन एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. द लाइन रिप्रेजेंटिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं. सो द लाइन विच रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक field lines. So this was that. Then we studied what is properties. What are the properties? Like poles. This is north and north pole. North and north pole repel each other. South and north pole attract each other. That means like pole will repel each other, unlike pole attract each other. Then
the direction of magnetic field line starts from north to south in a exterior part and interior part from south to north. Magnetic field has both magnitude and direction. The magnetic forces are more at the poles of the magnet and magnetic field line do not intersect each other. So this was our what we read. So अभी क्या पढ़े थे हम लोग प्रॉपर्टीज में? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? सपोज दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल. सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आता है? रिपल होता है. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आएगा तो अट्रैक्ट होगा. इसका मतलब क्या है? जब लाइक पोल्स क्या होता है, जब लाइक पोल्स आ रहे हैं साथ में तो रिपल होगा, अनलाइक पोल्स आएंगे तो अट्रैक्ट होगा. देख नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होगा? नॉर्थ से साउथ इन आउटर पार्ट एंड साउथ टू नॉर्थ इन इनर पार्ट. नेक्स्ट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आता है वो इंटरसेक्ट नहीं होगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. द मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज हायर एट द पोल रीजन. देन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था. अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पर रखते हैं. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर. क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर और राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. फिलहाल उससे पहले जाने से पहले दो एक्सपेरिमेंट करना दिखा देते हैं. तो ये एक है, दे लेते हैं इधर. ये हुआ. इसमें क्या है आप देख सकते हैं सभी लोग, एक मैग्नेटिक कॉम्पस का नीडल दिखाया गया है. तो सपोज समझ लीजिए अगर हम लोग करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो है, इस डायरेक्शन में फ्लो है. अगर हम लोग इधर एक कॉम्पस लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? नॉर्थ का डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है. अगर हम करंट को रिवर्स कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है. इसका मतलब क्या है? इस सेटअप का मतलब क्या है? अगर हम लोग करंट डायरेक्शन ऑफ करंट वेरी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो अरेंजमेंट रहता है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है वो भी रिवर्स होगा. अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो साउथ का इस डायरेक्शन होगा. अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा. सो गाइस, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट हियर यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट. इन दिस एक्सपेरिमेंट what was the thing you can come to know here? In this experiment you can see that we have taken a normally we have taken a battery and a switch and we have just connected it and we have taken here a compass here. So initially we do the previous example. So here what happens, if the current is flowing like this, the magnetic deflection is showing like this. If the current is flowing in this direction, the magnetic deflection is reverse. That means if the current direction varies, the magnetic field direction also varies. This is simple, so simple. If the in this diagram, if the current is coming in like this direction, the moment is in this direction. The current is coming in this direction, the moment is in this direction. That means when the current is reversed, the direction of magnetic field also reverse. So now we will study with what is the main part. We will go with the main part, the magnetic effect in a straight conductor. So what is the magnetic field when a current is flowing through a straight conductor? Here we are going to study what is the magnetic effect in a straight conductor. So for that we have some downloaded few diagrams for your sake. So let's show you one by one. This is one, yeah, let it be. So this is the setup. So in this setup they have asked you take a straight conductor. So here we are going to take a straight conductor. Let it be, this is the straight conductor.
एक कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है। सो एक कंडक्टर को क्या है, हम लोग एक रियोस्टैट लिए हैं, एक एमीटर लिए हैं, और यहाँ पे एक समझ लीजिए एक छोटा सा बैटरी लिए हुए हैं, फिर यहाँ से एक की है, फिर ये अटैच हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ये छोटा सा एक कार्डबोर्ड, छोटा सा एक कार्डबोर्ड लिए। तो समझ लीजिए डायग्राम उतना अच्छा यहाँ पे इस पेन से नहीं आ रहा है, तो फिलहाल आपको इसलिए डायग्राम यहाँ पर रखा हूँ। तो रियोस्टैट है, इधर एमीटर है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन। सो सेटअप रहा ये, सो टेक ए स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग एंड प्लेस इट ऑन ए कार्डबोर्ड एंड फिक्स द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को हमको क्या करना है, फिक्स करना है, क्योंकि ये अप एंड थ्रो मोशन ना हो, एंड कनेक्टेड टू एमीटर एंड अ बैटरी। सो नाउ स्प्रिंकल, हमको क्या करना है, स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स ऑन अ कार्डबोर्ड, sprinkle some iron filings on a cardboard. Once we sprinkle iron filings on cardboard and then switch on a battery, what happens? Once we switch on a battery, the current is flowing in this direction. We gently tap on this corner. हम लोग क्या करेंगे, टैप करते रहेंगे। थोड़ी देर के टैप करने के बाद once we start tapping here, we see that there is some formation of concentric circles. This is called as a magnetic field formation. क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्मेशन। सो अभी तो ये क्या हो गया, अभी व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्मेशन। सो व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्मेशन वी गॉट, बट डू वी नो द डायरेक्शन, how we will find out the direction in which circle is coming, like forming like in this direction, or the circle is forming in this direction. To know that, we'll bring a compass near the point P. Near the point P, we'll bring a compass near the point P. Once we bring the compass near the point P, we see the deflection in the compass. When the deflection is showing towards the north, we take that direction as a direction. If suppose ऐसा है, इधर लेते हैं आपके लिए, सपोज ये है सर्कल फॉर्मेशन, हम लोग कॉम्पस यहाँ पे रख रहे हैं। अगर मैग्नेटिक कॉम्पस का नीडल डायरेक्शन इस तरफ, नॉर्थ का डायरेक्शन इस तरफ ले रहा है, तो हम लोग विल टेक दिस एज दिस डायरेक्शन, द सर्कल इज इन this direction. That is the thing. Now what we have to do, now we have to do what happens now, now if we reverse the current, if we reverse the current क्या होगा, suppose if we reverse the current, then that means the current will be flowing in this direction, the current will be flowing in this direction. So what happens now, the direction of the magnetic field previously was like this, now the direction will be like this. क्या होगा अगर what happens if we reverse the direction, if we reverse the direction, what happened previously, see, it was like this, when the current was moving like this, let it be like this. What happens when the current is moving in this direction, when the current was moving in this direction, the circular magnetic field line direction was in this side. When the direction of magnetic field reversed, the magnetic field line direction is in this side. So this is one scenario, and another scenario. Now we will see, what is the use of rheostat here? You can say, sir, what is the use of rheostat? Rheostat is used to vary the current here. Now what we'll do, we'll see, we'll have a new sheet, okay, we'll have a new sheet. So here what we can see, so you can say, sir, what is the use of rheostat here? So here previously using rheostat, let it be we are sending only the 2 ampere current, and we see the deflection is normal deflection in a compass. Now we are sending a 5 ampere current, we see the deflection is more. What does it indicate? What does it indicate when we have a more current through it? What does it indicate? Can anyone think of it? What does that indicate? It indicates that the deflection of compass needle, that means the deflection of compass needle, placed at
place at given point, the deflection of compass place, यहाँ पे place हुआ है, place at given end, if current in the wire, if the current in the wire remains same, if the current in the copper wire remains same, what happen, remains same, the magnetic deflection will be very low. If we change, what we see, if we change if we change the current in the conductor, if we change the current in the conductor, what happens, we find that deflection is in the needle also changes. Suppose समझ लीजिए अगर हम लोग 2 एम्पियर suppose let it be, suppose if we are sending 2 ampere current and the deflection is very normal, what happens if we send the current in a 5 ampere, the deflection will be more. So this is one second scenario. Now the third scenario, we'll see to what is the third scenario. Third scenario क्या है, let it find out what is the third scenario. So to go with the third scenario, let me, it's not getting error, some third scenario. Now third scenario is like this. So this is the board and this is this one conductor and this is coil. So now if we are moving this previously we kept the compass here, and if we are moving this compass at the point Q, that is the point P, and if we are moving the compass away from the point P to Q, what happens, the deflection in the compass also decreases. Why it is going to decrease? We are moving away from the magnetic field. This was your third scenario. Now what is the third scenario? Now fourth point, what can be the fourth point? What can you notice from this figure? We can notice from this figure is the circles representing the magnetic field. The circles representing the magnetic field are concentric circles, or the concentric circles, and these concentric circles becomes larger and larger as we move away from the conductor. These concentric circles becomes larger and larger as we move away from the conductor. This was your fourth scenario in this experiment. So now we'll go in the now we'll teach in for a Hindi. We'll go with the Hindi portion now. So अभी समझ लीजिए, ये है आपका सेटअप. इस एक्सपेरिमेंट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू ए करंट. क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट कंडक्टर. अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे होगा. तो उसके लिए हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया है. तो आपके लिए इधर है. अभी हम लोग क्या करें, ये समझ लीजिए एक स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है. ओके, एक स्ट्रेट कंडक्टर है. तो हम आपको ये भी बना देते हैं. ये कार्डबोर्ड शीट है और यहाँ से स्पेस कंजस्टर है. यहाँ पे रियोस्टैट है, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे की है. तो सपोज़ ये हो चुका. तो अभी आपको अब ये हो गया. इधर आप लोगों ने क्या किया है, सेटअप तो हो चुका है. समझिए यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पे रियोस्टैट है, यहाँ पे की है. तो अभी क्या करना है, बैटरी ऑन करने से पहले हम लोग यहाँ पे आयरन फिलिंग्स को डाल रहे हैं. रैंडमली आयरन फिलिंग्स को डाल रहे हैं. और हम लोग जैसे ही बैटरी ऑन करेंगे और यहाँ पे इस कॉर्नर पे समझ लीजिए जेंटली टैप कर रहे हैं, तो हमको एक फॉर्मेशन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का एक सर्कुलर लाइन फॉर्मेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक सर्कुलर पैटर्न में फॉर्मेशन होगा. तो ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंट. एज सुन एज वी सेटअप इज़ डन एंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्प्रिंकल, जनरली हम लोग स्प्रिंकल कर रहे हैं और मैग्नेटिक बोर्ड पे हम लोग वायरिंग स्प्रिंकल कर रहे हैं. और हम जैसे ही मैग्नेटिक बैटरी ऑन कर रहे हैं और जेंटली टैप कर रहे हैं कार्डबोर्ड को, हमको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्मेशन आ गया. वो किस तरह फॉर्मेशन हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये रहा आपका सिस्टमेटिक सेटअप का फॉर्मेशन. अभी
हम लोग डीप में जाएंगे। तो इसमें हम लोग को 3 सिनेरियो को याद करना है। मोस्ट प्रोबेबली डोंट फॉरगेट, रिमेंबर 3 सिनेरियो। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है बता देता हूँ। तो फर्स्ट सिनेरियो हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो अभी ये है कि चेंज इन करंट। सो चेंज इन करंट, सो अगर हम लोग करंट अभी इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास को इधर ला रहे हैं, हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। आपको पता है ना, ओ सॉरी मैंने भूल गया, सॉरी अभी इसमें बता देता हूँ। तो अभी इस फिगर में हम लोग को देख रहे हैं, तो हम लोग ये हुआ तो मैग्नेटिक लाइंस फॉर्मेशन हो चुका प्रीवियसली। तो हम लोग को दिख गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है। तो अभी किस डायरेक्शन में हो रहा है मैग्नेटिक सर्कुलर जो सर्कल लाइंस फॉर्मेशन हुआ है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, हम कैसे देखेंगे। तो हम लोग नाउ विल ब्रिंग, हम लोग क्या करेंगे, एट पॉइंट P विल ब्रिंग अ कॉम्पस। At point P we bring a compass. So once the compass is bring, we see this there is a deflection, because we know that when a current is passing through a conductor there is a magnetic field, and when we अगर हम लोग compass को ला रहे हैं और देख रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। तो अभी डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, मैग्नेटिक नीडल इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा। सपोज मैग्नेटिक नीडल इस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैग्नेटिक का जो फील्ड लाइन रहेगा तो इस डायरेक्शन में होगा। सो सेकेंड, अगर हम लोग करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग करंट को रिवर्स कर रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल इधर ला रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास ला रहे हैं, तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स एज वी प्रीवियसली मैंने जब बताया था, एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो फॉर्मेशन हो उसका भी डायरेक्शन चेंज होगा। ये था आपका फर्स्ट सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो क्या था, as magnetic field direction, magnetic field line direction, magnetic field line direction कैसे चेंज होगा, as we change the direction of the current, magnetic field line का डायरेक्शन भी चेंज होगा। कैसे, हम लोग कैसे पता किए, by bringing a magnetic compass near to the conductor, when the current was flowing in one direction, when we brought a conductor, when we bought a magnetic compass, the deflection is showing in another one, in a particular direction. When we reverse the direction of current, it was showing in the opposite direction of the previous one. So क्या हुआ, जब करंट हम लोग पास कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो जैसे ही हम लोग कंपास ला रहे हैं वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा था। जैसे ही हम लोग ने करंट रिवर्स किया है और देख रहे हैं तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी, मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो रहा है। ये था आपका फर्स्ट सिनेरियो। तो फर्स्ट सिनेरियो तो ख़त्म होगा। नाउ व्हाट इज द सेकेंड सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो क्या है, सेकेंड सिनेरियो ए है चेंज इन करंट। क्या है, चेंज इन करंट। सो हम लोग इधर चेंज, सर आप बोलेंगे सर बैटरी है कैसे करंट चेंज करेंगे, इसीलिए हम लोग इधर रियोस्टैट यूज़ किए हैं। सो रियोस्टैट का काम ही वही है, करंट को स्टेबल तरीके से भेजना। आप लोग को पता ही होगा रेजिस्टेंस रहता है वायर में, तो रियोस्टैट एक स्टेबल करंट भेजता है। जब मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल का लेसन लूँगा तभी मैं रियोस्टैट को क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँगा। सो इधर सपोज समझ लीजिए फर्स्ट हम लोगों ने 2 एम्पियर करंट इस कंडक्टर में भेजा है, तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कितना था, हल्का सा हो रहा था। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, हल्का सा हो रहा था, इधर उधर इधर उधर। जैसे ही मैंने 5 एम्पियर का करंट भेजा, समझ लीजिए जैसे मैंने 5 एम्पियर का करंट, क्या हो रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर, तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, रफ्तार पकड़ लिया। इसका मतलब क्या है, एज वी चेंज द करंट, द चेंज इन द मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन ऑल्सो हाई। एज द करंट हम लोग चेंज कितना कर रहे हैं, एज वी चेंजेस द करंट वेरी फास्ट, 2 to 5 एम्पियर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, द रिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपल्स इज ऑल्सो हाई।
तो ये रहा आपका सेकेंड सिनेरियो। तो अभी थर्ड सिनेरियो क्या रहा, अब हम लोग का थर्ड सिनेरियो। व्हाट वाज थर्ड सिनेरियो? थर्ड सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? थर्ड सिनेरियो अभी क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया और चेंज भी हो गया। अभी क्या है, अगर मैग्नेटिक कॉम्पस, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ देखना है, तो इसमें क्या है, थर्ड सिनेरियो, इफ वी मूव कॉम्पस, डिज़ाइन कर रहा हूँ कॉम्पस, फ्रॉम पॉइंट P टू Q, सम पॉइंट P से अगर हमें Q, इधर समझिए Q तक को मूव कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? अगर इफ़ आई एम मूविंग द कॉम्पस फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट हैपन? अगर समझिए कॉम्पस इधर है और 5 एम्पियर का ही करंट आ रहा है, डिफ्लेक्शन ढक 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 हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? मैग्नेटिक कॉम्पस वीक हो जाएगा, उसका डिफ्लेक्शन हल्का 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 कम होते जाएगा। क्यों? बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्शन ज़्यादा दे रहा है, यहाँ पे उससे कम देगा, वहाँ यहाँ से उस पर कम देगा, यहाँ पे, बिकॉज भाई यहाँ पे अगर हम लोग का कंडक्टर है, यहाँ पे अगर कंडक्टर है और हम लोग यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मूव करके जाए, क्या हो रहा है? वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। सो वंस वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो रहा है? वी सी दैट the deflection in the magnetic compass also reduces or you can say decreases. So ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। अभी लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। क्या है फोर्थ पॉइंट, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, आप लोग सोच सकते हैं फोर्थ पॉइंट क्या होगा। ये डायग्राम देखिए और आपके दिमाग में क्या आ रहा है बोलिए। ये देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है बोलिए, सोचिए सोचिए क्या है ये, किस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है? दिस इज नथिंग बट योर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग योर मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग क्या देखेंगे, दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर। दिस वॉज योर फोर्थ पॉइंट। समझ में आ गया ना? तो हम लोग आप लोगों के लिए 4 सिनेरियो था ना, 4 सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो क्या था? फर्स्ट सिनेरियो, व्हाट वाज फर्स्ट सिनेरियो? फर्स्ट सिनेरियो था डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में? एज वी चेंज, अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जो ये अगर हम लोग पॉजिटिव, अगर लेफ़्ट से राइट जा रहा है, सपोज लेफ़्ट साइड से अगर करंट पास हो रहा है एंड आप मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी लेफ़्ट में दिखा रहा है, सपोज मैं बोल रहा हूँ लेफ़्ट में दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन भी लेफ़्ट में रहेगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक करंट राइट साइड में, करंट का डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा है, अगर करंट का डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी राइट साइड में होगा, इट इज़ completely depends upon the direction of current. How in which direction we send the current, in the same direction the magnetic field line also occurs. This was your first scenario. So second scenario क्या था? कुछ याद करें, याद करिए सेकेंड सिनेरियो क्या था, हम लोगों ने क्या किया था सेकेंड सिनेरियो में? सेकेंड सिनेरियो में क्या था? थिंक, ये बात नहीं है कि भूलना चाहिए और नहीं सर आप पढ़ा रहे हैं क्या, अभी आप लाइव इंटरेक्शन नहीं है फिर भी आप क्यों ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सब लोग छिप के ऐसे ही बैठे रहें क्लास में और सिर्फ ऐसे ही मज़ा ना करें, कुछ ऐसे ही देखते रहें वीडियो, ऐसी बात नहीं है। तो थिंक कीजिए हमने क्या किया था बाद में, नेक्स्ट क्या किया था हमने, ये तो हो गया। नेक्स्ट हमने किया था चेंज इन करंट। चेंज इन करंट दैट मीन्स पहले हम लोग 2 एम्पियर का करंट भेज रहे थे थ्रू रियोस्टैट,
तो डिफ्लेक्शन कितना था, हल्का सा डिफ्लेक्शन था। अगर हम लोग 5 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन बहुत सारा था। इसका मतलब क्या है, as the amount of current increases in the conductor, the deflection in the magnetic compass also increases. जितना करंट हम लोग कंडक्टर में इंक्रीज होगा, डिफ्लेक्शन भी उतना तेज़ी से इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा करंट रहेगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, मोर द करंट मोर द मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो, इफ वी मूव द कंपास फ्रॉम P to Q, what happens? It means that the deflection reduce। क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं बाबा, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग दूर जा रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन हल्का हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या था, concentric circle। These concentric circles indicates what, magnetic field line, and as we move away from the conductor, we see that the concentric circles becomes larger and larger, correct? So this was your 4 scenario that you has to remember when you explain anything, when you want to write anything about what, magnetic field due to a current through a straight conductor. So what are the 4 scenario? First scenario is direction of magnetic field line. As we change the direction of current, magnetic field line also changes the direction. Change in current, if we changing the current through a conductor, that means there is a change in a deflection in the magnetic field. That means higher the current, higher the magnetic field. Third one, if you are moving the compass from point P to Q, or if you are moving the compass from the away from the conductor, we see that the deflection in the compass also decreases because we are moving away from the magnetic field. And we see that there is a concentric circle formation. This concentric circle formation indicates that magnetic field line, and as we see that as we move away from the conductor, the concentric circles becomes larger and larger. So this was your 4th scenario that you have to remember in this magnetic field due to current through a straight conductor. So then I said about something, we'll go about for thumb rule. What is Fleming's right hand thumb rule? ये रहा आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है? समझ लीजिए, एक करंट है, ये कंडक्टर है और इसमें करंट जा रहा है। तो आपका एक थंब को, करंट को, वायर को पकड़िए, एक कंडक्टर को पकड़िए और थंब को ऐसे पकड़िए कि वो जिस तरफ से करंट जा रहा है, आपको करंट पता रहना चाहिए, जिस तरफ करंट जा रहा है तो उस तरफ आपको थंब को इंडिकेट कर दीजिए। जैसे कि देखिए ये है कंडक्टर और इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा थंब इस डायरेक्शन में, और ये बाकी 4 फिंगर्स है ना, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखाएंगे। सो राइट हैंड थंब रूल का मतलब ही यही है, अगर हम लोग किसी कंडक्टर को हैंड में पकड़ रहे हैं और उसका डायरेक्शन हमको पता है और हम लोग थंब को इंडिकेट कर रहे हैं वो करंट, और बाकी 4 फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमको दे रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट, व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड thumb rule? That means simple, it is very simple, that take a conductor, and as we know that direction of current, such that take a conductor in your hand such that the thumb is indicating the direction of current, and remaining your 4 fingers, these 4 fingers will indicate the magnetic field line direction. So this was today's chapter which we learned fully, and we'll summarize now. So what we have learned, first we have revised. What we revise, what is magnetic field line, magnetic field properties, correct? Magnetic field, what is magnetic field? Area around which we can experience a magnetic effect is called magnetic field. The lines representing this magnetic field is called magnetic field line. And what are the properties? What is like pole repulse, unlike poles attract, it has both magnitude and direction, and they do not, the magnetic field line do not intersect each other, and then the strength of the magnet is more at the poles
anything which I am moving, yes, the magnetic field lines emerges from north to south, this exterior part, and interior from south to north. हमने then what we have learned, then we came to know that, then we learned if I am taking a conductor, sorry, if I am taking a two conductor, if I am taking two conductor and placing the compass here, if the current direction is in this side, the current direction is in this side, the deflection is this side. If the direction is in this side, that deflection is this side. That means as the magnetic field line, the magnetic fields or the magnetic effect depends upon the direction of the current. This is what we learned. Then we learned what is the, then we took a straight conductor and then placed in a cardboard sheet. Then we had a rheostat, ammeter, and a key and a battery. Current is moving in this direction. Rheostat. We see that concentric circle formation. This was your setup. So now here what we will do, first we will find out the direction of magnetic field. To find out the direction of magnetic field, how we are going to find out the magnetic field direction? It is nothing simple. We will bring a compass near to it. Once we see that, once we bring the compass near it, we see some deflection. The deflection in a compass indicates there is some magnetic field. The deflection of north pole indicates the direction of the magnetic field line. If its deflection is this side, we take the direction of the magnetic field this line, and if we reverse the current, we see that it's going to in this direction. We had a four scenario, right? First scenario was what? Direction. Next scenario, change in current. If we change the current from 2 ampere to 5 ampere, what happens? The deflection of the magnetic compass increases. That indicates if the current is high, the magnetic deflection is also high. That means magnetic field is also high. Next, third one, if you are moving from point P to Q, what happens? That means if we are moving the compass from conductor away, it means that the deflection in the magnetic compass will be delayed. That means less, decrease, because we are moving away from the magnetic field. Third one, concentric circles. We can see these concentric circles are nothing but the representing magnetic field lines. As we see, the concentric circles becomes larger and larger as they are moving away from the conductor. These are your four scenario. Then what was the last part we did? Right hand thumb rule. What does it mean? If it is a conductor and is moving in this direction, we take a conductor and such a way that thumb is indicating your direction of current. This is direction of your current, and remaining these four fingers indicates your direction of magnetic field line. तो फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज हम लोग रिवाइज़ किया। क्या रिवाइज़ किया है? पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, प्रॉपर्टीज़ पढ़े। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड इज़ नथिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज़ क्या है? द एरिया अंडर विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी सी। एक एरिया है जिसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? द लाइन्स विच रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसका और मैग्नेटिक, जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और प्रॉपर्टीज़ में so like poles repel, unlike poles attract, and its magnetic field line start from north to south, and that is outer part, and inner part from south to north. The magnetic field line do not intersect each other. They do not intersect each other. It has both magnitude and direction, and then at last the strength of the magnets is at the poles. ये रहा हमारा आज का रिवीजन। तो हम लोगों ने किस तरह स्टार्ट किया है? हम लोगों ने
इस तरह स्टार्ट किया है। हम लोगों ने आज एक कंडक्टर लिया है, फिर और समझ लीजिए करंट ये अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट अभी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो आ रहा है और अगर हम लोग कॉम्पस नियर ला रहे हैं तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, नॉर्थ इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग कॉम्पस करंट इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक कॉम्पस हम लोग इधर ला रहे हैं, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन नॉर्थ इस तरफ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया है, कार्डबोर्ड पे फिक्स कर दिया है, कार्डबोर्ड फिक्स कर दिया कि अप एंड मूवमेंट ना हो। फिर की लिया है, फिर एक रियोस्टैट लिया है, फिर एक एमीटर लिया है, फिर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए। सपोज अभी ये हुआ आपका सेटअप। इस सेटअप होने के बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग आयरन फिलिंग्स को ड्रॉप कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग बैटरी को ऑन कर रहे हैं और जेंटली से टैप कर रहे हैं, इधर हम लोग सर्कल फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो ये सर्कल फॉर्मेशन क्या दिखा रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहा है। तो इसका भी डायरेक्शन चाहिए ना, किस तरफ, कहाँ से किस तरफ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रहा है। तो उसके लिए हमको इस एक्सपेरिमेंट में 4 सिनेरियो था। तो पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास लाएंगे, जिस तरफ मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ का पॉइंट आउट करेगा उस तरफ का हम लोग डायरेक्शन ले लेंगे। अगर हम लोग करंट रिवर्स कर रहे हैं, क्या होगा, हमको पता है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स होगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये था पहला सिनेरियो। नाउ दूसरा सिनेरियो क्या था, चेंज इन करंट। सो दूसरा सिनेरियो क्या है, चेंज इन करंट। दूसरा सिनेरियो क्या है, चेंज इन करंट। हम लोग अगर करंट को चेंज कर रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, समझ लिए 2 एम्पियर से हम लोग 5 एम्पियर को ले आ रहे हैं। तो हमको क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल्स 2 एम्पियर में थोड़ा था और 5 एम्पियर में। इसका मतलब क्या है, एज वी गिव मोर करंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मोर। ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल फंडा। थर्ड वन आपके हिसाब से रिकॉल कीजिए, थर्ड वन क्या था, थर्ड वन ये कुछ एक बार ये ऐप अच्छा चलता है, देखिए डिलीट कितना भी करो तो नहीं होता है, और अभी डिलीट कर दूंगा तो पूरा का डिलीट हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। देखिए पता नहीं, छोड़िए। सो थर्ड फंडा क्या है, समझिए ना, फ्रॉम पॉइंट P टू Q। अगर हम लोग कॉम्पस को कंडक्टर से दूर लेके जा रहे हैं, क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कॉम्पस छोटा कम होते जाएगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को दूर, मैग्नेटिक कॉम्पस को मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेके जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मैग्नेटिक कॉम्पस पे रहेगा नहीं, कम होते ही जाएगा, तो डिफ्लेक्शन भी कम होते जाएगा। इसका मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड, if we moving the compass from away from the conductor, the reflection of magnetic field in a compass also decreases. Why? क्योंकि we are moving away from the magnetic field. Then fourth point बहुत अच्छा लगता है, concentric circle। हमको पहले ही पता है concentric circle is representing the magnetic field line. We can see, observe that the concentric circles are becoming larger and larger as they are moving away from the conductors. So, आज का ये था। तो आप लोग को कैसे लगा है पता नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ डू कमेंट। अगर कुछ भी, अगर आपको लग रहा है सर आपका वे ऑफ टीचिंग हमको प्लीज़ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ डू कमेंट एवरीवन यार, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ अपने दोस्त लोग को भी सजेस्ट कीजिए, प्लीज़ सजेस्ट ऑल योर फ्रेंड्स
सो इवन दे कैन इवन लर्न इन अ सिंपल वे। मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, नो रिस्की नथिंग, बहुत सिंपल तरीके से, ताकि सभी लोग को ईजी से कॉन्सेप्ट अच्छा लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग SRB क्रिएटर्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो दैट अभी तो सब बहुत से आदमी का एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो अभी करेक्ट पॉइंट पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। सभी लोग का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो अच्छा करता हूँ सभी लोग अच्छे से लिख रहे हैं, एक सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जा रहा है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।